কি ভারত বন্দে বন্দে ভারত মাতা কি বন্দে বন্দে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে বন্দে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে 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 ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে 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 ভারত মাতা কি ও भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की আৰু দিন না হাধনি তো দিব পাৰে হাধনি তো দিব পাৰে হাধনি মানে হা আছে ওম আছে নহয় ওম ও থিয় হৈ সকলোৱে হাত ওপৰলৈ তুলি দুইখন হাত ওপৰলৈ তুলি থিয় হৈ ওম বুলি চিঞৰিব সকলোৱে হাত ওপৰলৈ তুলিব এখন বটাৰে তেখেতক আদৰণি জনাব ৰাজকুমাৰ জালানে এয়া ৰাজকুমাৰ জালানে এখন বটাৰে তেখেতক আদৰণি জনাইছে এটা ফুলাম জাপিৰে তেখেতক আদৰণি জনাব মাননীয় জ্যোতিষ চৌধুৰীয়ে স্বামীজী মহাৰাজক পতঞ্জলি যোগ সমিতি বজালিৰ তৰফৰ পৰা এখন আদৰণি পত্ৰ পাঠ কৰিব মাননীয় মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ গোস্বামীদেৱে মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ গোস্বামীদেৱক স্বামীজী মহাৰাজৰ আদৰণি পত্ৰ পাঠ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো মহানুভৱ যোগগুৰু স্বামী ৰামদেৱ অপেক্ষাকৃত অসম মাতৃৰ গৌৰৱমণ্ডিত এটি প্ৰাচীন অঞ্চল বজালিৰ ভৌগোলিক স্থিতিৰে উত্তৰণ চিহ্নিত পাঠশালাৰ সেউজী বৰণ স্নাত ভূমিত দুৰ্লভ পদাৰ্পণ কৰাৰ এই স্মৃতি সঞ্চিত ক্ষণৰ পৰশেৰে সমগ্ৰ বজালিবাসীৰ হৈ আমি মন আৰু হৃদয়ৰ যুগ্ম উমেৰে আপোনালৈ স্বাগত সম্ভাষণ যাচিছোঁ এয়া বজালিৰ ইতিহাসত হ'ব চৈতন্য সমৃদ্ধ এক অনাবিল কাল আশ্ৰয়ী অধ্যায় মহান সংকল্প আৰু আদৰ্শৰ সাহসী নাবিক হিচাপে দক্ষতাৰে আপুনি মেলি দিছে জনসমুদ্ৰত আপোনাৰ মন ডিঙা আমাৰ গভীৰ বিশ্বাস আৰু আত্মপ্ৰত্যয় হৈছে যে আপোনাৰ এই অন্তৰ্দীপন উপচিকিৎসু আৰু সংস্কাৰ সাধনাৰ মহাযাত্ৰাত কোনো অবাঞ্ছিত ধুমুহান্তাৰৰ সৃষ্টিকাৰক হ'ব নোৱাৰে সৰ্বদিশৰ সফলতা হওক দীৰ্ঘম্যাদী জীৱনৰ জনালী আভা এই কামনাৰে আমাৰ শত শত প্ৰণিপাত নিবেদন কৰিলোঁ সত্যং পৰম ধীমহি নমস্কাৰ ভৱদীয় নিখিল দত্ত সম্পাদক গিৰিধৰ চৌধুৰী সভাপতি
পতঞ্জলি যোগ সমিতি বজালী পাঠশালা স্থান বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ দিনাংক 12/2/2011 ইংৰাজী। আৰু সেই একেখনি আদৰণি পত্ৰ হিন্দী ভাষাত মোহন কুমাৰ শৰ্মাই স্বামীজীক প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ পিছতে আছে বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী। বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব মাননীয় বজালী মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি দীপক কুমাৰ চৌধুৰীদেৱে। তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া বজালী মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি দীপক কুমাৰ চৌধুৰীয়ে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। আমি আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ। স্বামীজীৰ পাঠশালা আগমন উপলক্ষে পতঞ্জলি যোগ সমিতি বজালীয়ে এখন স্মৰণিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু সেই স্মৰণিকাখন উন্মোচন কৰিব স্বামীজীয়ে। আৰু সেই স্মৰণিকা যোগ জ্যোতিৰ উন্মোচন কৰিবলৈ স্বামীজীয়ে ওচৰলৈ সেই স্মৃতিগ্ৰন্থখন লৈ যাব অৰুণ কুমাৰ শৰ্মা, ৰাজকুমাৰ জালান, চাৰু চৌধুৰী, ছায়া তালুকদাৰ, লাচিত মেধি, জিতেন তালুকদাৰ, দীপিকা পাটগিৰি, মোহন কুমাৰ শৰ্মা, ভূপেন শৰ্মা, তৰুণ লহকৰ আৰু দেৱ কুমাৰী আটাইকেইগৰাকীকে আমি যোগ জ্যোতি বোলা স্মৃতিগ্ৰন্থখন স্বামীজীৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যোগ জ্যোতি পতঞ্জলি যোগ সমিতি বজালীয়ে স্বামীজীৰ পাঠশালা আগমন উপলক্ষে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা স্মৃতিগ্ৰন্থ। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हकल भाई भौणी का मोर हृदय स्नेह प्रेम अभिनंदन। आज आप सबके बीच में आके आपको अपने हृदय के करीब पाके मैं आत्मा से आनंदित हूं। और असम एक छोटा सा प्रांत है, लेकिन जितनी सांस्कृतिक विविधता, जितनी भाषाएं, बोलियां और जितनी सुंदर सुंदर यहाँ की वेशभूषा और अलग अलग जातियों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद ये असम की एकता, अखंडता, संप्रभुता अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक प्रांत में अक्सर एक बोली, एक भाषा मुख्यतः होती है। यहाँ असमिया भी उतनी ही जानते हैं लोग, बांग्ला भी उतना ही जानते हैं, बोडो भी उतना ही जानते हैं और अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी उतना ही जानते हैं। और चार तो मुख्य हो गई, और भी छोटी छोटी बोलियां हैं। और यहां मैं वेशभूषा देख रहा हूं, देखो मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमा हूं। ये सत्य है कि हिंदुस्तान जैसी तहजीब, हिंदुस्तान जैसी संस्कृति, हिंदुस्तान जैसी सभ्यता, हिंदुस्तान जैसा प्यार मोहब्बत, हिंदुस्तान जैसा ऊंचा चरित्र पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। इतने पतन के बाद भी, माना हमारे यहां पर भी पतन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी, पतन के बावजूद भी बहुत ऊंचाई पर है हम। और वेशभूषा, महाराष्ट्र की साड़ी, मारवाड़ियों की साड़ी, फिर गुजरातियों की, फिर आप बंगाल की साड़ी देखो, और मुझे सब मैंने देखा है।
सबकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ हमेशा भारतीय वेशभूषा की, लेकिन इसमें जब इधर बोड़ो की क्या मेखला क्या बोलता, दोखना, दोखना, और दोखना तो देखने योग्य है। हिंदुस्तान जैसी वेशभूषा पूरी दुनिया में कहीं, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ के पकवान, खाना, हिंदुस्तानियों को खाना भी आता है और पैखाना जाना भी आता है। विदेशों में लोग तो वो खड़े खड़े तो ऐसे लैट्रिन करते हैं, और लैट्रिन करने के बाद में आपको ताज्जुब होगा कोई धोते नहीं है। आप सोचेंगे कि फिर वो लोग मतलब ऐसे चल देते, वो धोते नहीं है, वहां धोने का सामान ही नहीं होता है। वो लैट्रिन में खाली पेपर रखा होता है, पूछो और भागो। हम शुरू में गए तो हम फंस गए। मैंने कहा भाई अपना तो ये जुगाड़ नहीं चलेगा, तो हम जब पानी पीने वाली बोतल है, जैसे हिंदुस्तान में बोतल लेके जाते हैं, हम विदेश में जाते हैं तो बोतल लेके जाते हैं। वहां लैट्रिन जाने के बाद हाथ नहीं धोते लोग पीछे से। हाँ, और ज्यादातर लोग बहुत ठंड वाले प्रदेश में तो अब तो नहाने लग गए, नहीं तो पहले तो कई कई दिन नहाते नहीं थे। वो सू जो करते हैं ना, वो क्या हो, स्प्रे कर लेते हैं इधर से, और रसोई नहीं होती उनके यहाँ, तो कैसे खाते? सब बर्गर पिज्जा रेडीमेड आता है, ज्यादा से ज्यादा घर में ओवन होता है उसमें गर्म करके खाते हैं। उनको मैक्सिमम लोगों को तो दाल क्या होता है ये पता ही नहीं है। उनको दाल ही खाना आता है, सब्जी पकाना नहीं आता है। हिंदुस्तान जैसा खाना, यहाँ पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, सब जगह का खाना आप देखो तो कहीं ढोकला बनता है, कहीं पराठा बनता है, कहीं दाल बाटी चूरमा बनता है, कहीं कहीं गोल गोल क्या बनता है चावल का, इडली डोसा बनता है, और कहीं कोई क्या क्या। पूरे हिंदुस्तान में मैंने अलग अलग व्यंजन देखे हैं। भारत जैसा, यहां तो लोग 56 भोग बोलते हैं, 56 भोग नहीं, हिंदुस्तान का पूरा खाने की वैरायटी देखो तो 1000 प्रकार से ज्यादा की खाने की वैरायटी मिलती है, 1000 से ज्यादा। और कुछ तो खा खा करके इतने तगड़े हो गए। हिंदुस्तान जैसा खाना, हिंदुस्तान जैसी भाषा, हिंदुस्तान जैसी संस्कृति सभ्यता, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, कितना सुंदर मुल्क है हमारा। इधर से हिमालय पूरा उधर जम्मू कश्मीर की वादियों से, केसर की क्यारियों से शुरू होता है, और लेह लद्दाख होता हुआ, पूरा हिमाचल होता हुआ, उत्तराखंड होता हुआ, फिर इधर से पूरा ये पूर्वांचल असम, फिर मणिपुर, मेघालय और सिक्किम, त्रिपुरा, कितना सुंदर हिमालय क्षेत्र। कितनी भारत में जितनी ऋतुएं आती, पूरी दुनिया में उतनी ऋतुएं कहीं पर नहीं आती है। दुनिया की सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता यहीं पर पैदा हुई। हमको गर्व है कि हम उस भारत में पैदा हुए हैं जो विश्व का गुरु रहा है, विश्व का मार्गदर्शक रहा है। उस भारत के हम रहने वाले हैं। हम ऋषि पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं। हम उस धरती पर हमने जन्म लिया है जहाँ पर गौतम काद जमनी महर्षि पाणिनि पतंजलि, जहाँ पर जन्म लिया भगवान राम ने, कृष्ण ने, शिव ने, जहाँ पर जन्म लिया कोट कोट ऋषि मुनियों ने। और असम में बात करें तो जहाँ पर जन्म लिया पूज्य गुरुदेव शंकर देव जी ने, ऐसी धरती पर हमने जन्म लिया। और ये इतना सुंदर ये पूरा का पूरा प्रांत असम, आज आपसे छोटी छोटी बात और करता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाता।
भाई बहनों, इसका जगह का नाम है पाठशाला। सुबह मैंने सोचा मुझे किसी स्कूल में लेके जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पाठशाला, स्कूल के अलावा किसी गांव का नाम पहली बार सुना। इसका मतलब पाठशाला के लोग बहुत सीखने वाले हैं, और जिंदगी में सदा सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। पाठशाला वाले जिंदगी को एक पाठशाला समझ करके हमेशा विद्यार्थी बने रहना, हमेशा सीखते रहना। अपने अनुभव हमको सिखाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो एक्सपीरियंस हमको सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं। गुरु हमको सिखाते हैं। माता पिता पहले गुरु होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरु। जिससे भी हमने कुछ सीखा उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, कृतज्ञ कभी नहीं होना। माता पिता, गुरुओं का, समाज का, राष्ट्र का, इस पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, भगवान का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। उस उपकार को सदा स्वीकार करना। कितना उपकार किया है हमारे ऊपर माँ बाप ने। माँ 9 महीने अपने पेट में अपने खून से हमको पालती है। 9 महीने अपनी गोद में रखती है, हमारा मलमूत्र सब अपने हाथों से साफ करती है। माँ 9 महीने अपने कोख में, अपने उदर में 9 महीने अपनी गोद में रखती है, और जब तक माँ दुनिया से नहीं चली जाती है तब तक अपने दिल में हमको रखती है। और माँ बाप बिना किसी स्वार्थ के हमसे निश्चल प्रेम करते हैं, और उनसे ज़्यादा हमारा हित चाहने वाले, उनसे ज़्यादा प्रेम करने वाले हम दुनिया में कोई नहीं होते हैं। माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना, ये भी आज सीख लेकर के जाना। माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना। माँ बाप पहले गुरु होते हैं, फिर गुरु हमें सिखाते हैं, शास्त्र से हम सीखते हैं, और योग ध्यान करते हैं तो हमारी भीतर की प्रज्ञा जागृत हो जाती है। और जिसकी भीतर की प्रज्ञा जागृत हो गई और आत्मा में जिसने परमात्मा का प्रकाश पा लिया, फिर तो वो स्वयं शिव हो जाता है। आपने सुना होगा, शिव का तीसरा नेत्र खुल गया था। जो प्राणायाम योग ध्यान साधना करते हैं उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, उनके भीतर बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। जो प्राणायाम योग साधना करते हैं, देह देवालय शिवालय बन जाता है। और जब तीसरी ज्ञान की आंख खुलती है, हम शिव बन जाते हैं, और ये सत्य है। शिव जैसी ही पावन आत्मा है हमारी, याद रखना। अपना मूल्यांकन कभी भी कम करके मत आंकना, कभी भी हीन भावना में नहीं जीना। हमारे अंदर वही आत्मा है जो भगवान राम में थी, हमारे अंदर वैसी ही आत्मा है जैसे भगवान कृष्ण में थी, हमारे अंदर वैसी ही आत्मा है जैसे ऋषि मुनियों में आत्मा थी। पूरी दुनिया में जिन्होंने बड़े काम किए, उनके पास जितना सामर्थ्य है वो सब हमारे भीतर ही है। आइंस्टीन के पास में जो दिमाग था वही दिमाग हमारे पास में है। पतंजलि के पास में जितना बौद्धिक सामर्थ्य था वही हमारे पास में है। पूरी दुनिया में, मैं किसी विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जिन्होंने बड़ी क्रांतियां की हैं, जिनके आदर्शों पर ये पूरी दुनिया चल रही है, हम हमेशा आदर्शों के पीछे ही चलते हैं। कोई ना कोई अपनी जिंदगी में एक आदर्श मानते हैं और उस आइकॉन को उसको अपना आइडियल बना करके और हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। स्वयं भी एक आदर्श बनना चाहते हैं, हम आदर्शों पर चलते हैं। भगवान राम को हम आदर्श मानते हैं मर्यादा में जीने का। एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक इंसान को कैसा होना चाहिए।
तो हम भगवान राम को पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम मानते हैं, इसलिए उसको बोलता मर्यादा पुरुषोत्तम। हम भगवान राम को, माता सीता को अपना आदर्श मानते हैं, हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं, उन जैसा बलवान बनना, उनकी तरह हमको सेवा करनी है। हम भगवान श्री कृष्ण को आदर्श मानते हैं कि उनकी तरह हमें कर्म करना है, ज्ञानी रहना है, स्वाभिमानी रहना है और अपने कर्म को अपना धर्म मान के निभाना है। पाप, अनाचार, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, असुरत्व को मिटा करके देवत्व की प्रतिष्ठापना करनी है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कह रहा था हम अपने जीवन में कोई आदर्श सामने रख करके चलते हैं और खुद भी आदर्श बनना चाहते हैं। आप एक आदर्श पुत्र बने। आदर्श पुत्र कौन? जो अपने कुल वंश खानदान का नाम आसमान पर लेकर के जाए, ऊंचा कर दे अपने देश का नाम। आदर्श पुत्र बनना, आदर्श पिता बनना। आदर्श पुत्र वो जो बाप से आगे निकल जाए, धन में, दौलत में, यश में, प्रतिष्ठा में, इज्जत में। जिसका बाप के कारण से नाम जाना जाता है वो पुत्र नहीं है। सच्चा पूत वो है जिसके पुत्र के कारण से जिसका बाप का नाम जाना जाता हो, वो सुपुत्र होता है। बाप के कारण से जिस बेटे की पहचान हो, उसमें बेटे की क्या, उसमें बेटे का क्या पुरुषार्थ है? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी तुम्हारे से होनी चाहिए। पिता की बहुत इज्जत करना, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा करना कि लोग तुमसे पूछे तुम्हारा बाप का क्या नाम। तुम्हारे बाप के कारण से तुम्हारी पहचान होती है, ये तुम्हारी शान नहीं, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके तुम क्रेडिट लेने के हकदार नहीं हो। तुम ऐसा कुछ काम करके दिखाना कि तुम्हारे कंट्रीब्यूशन से तुम्हारे कुल वंश खानदान का नाम हो और तर जाए, लोग कहें बेटा हो तो ऐसा हो। आप एक आदर्श बेटा बन के दिखाओ, आदर्श पुत्र बनो। और आदर्श पिता बनो। आदर्श पिता कौन? जिसके आचरण का अनुकरण करके उसके पुत्रों को गर्व की अनुभूति होती है। जैसे मैं अपनी मां पर गर्व करता हूं कि मेरी मां ने मुझे संस्कार दिए, मेरी मां ने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया और मेरी मां ने ही आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया और संस्कार दिए। मेरी मां कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ एकदम, लेकिन मुझे अपनी मां पर गर्व है। मेरी मां कोई मॉडलों की तरह बहुत कोई खूबसूरत और बदसूरत भी नहीं थी, साधारण एक औरत गांव की। लेकिन हर एक को अपनी मां अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपनी मां पर फक्र करता हूं, गर्व करता हूं। मेरी मां जैसी सबको मां मिले, जो सबको संस्कारों से सींचती है, निर्दोष प्यार करती है, ऐसी मां। आपको एक आदर्श पिता बनना है, आदर्श मां बनना है। आदर्श मां कौन? जो रामकृष्ण, पतंजलि, आइंस्टीन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी वीर, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, बलवान, चरित्रवान संतान पैदा करे। ऐसा नहीं बच्चे पैदा कर दिए, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न जीने का ठिकाना, न पढ़ने का ठिकाना, कुछ है ही नहीं। एक बच्चे को ऐसा तैयार करो हो जैसे सूरज के उदित होने पर पूरी जहां में रोशनी हो जाती है। ऐसा बच्चा पैदा करो जिससे तुम्हारा ही नहीं, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए। ऐसी मां होती है। आपको एक आदर्श पिता बनना है। ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले आदर्श पिता नहीं है। फूंक मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और मुंह बच्चों में फूंक मार देते हैं। नालायक है, क्या कर रहे? अरे तुम पिता हो गया है, क्या कर रहा है? अपने बच्चों को तू कैंसर दे रहा। बच्चे कभी भी एक्सेंट से नहीं समझते, एक्सेंट से समझते हैं। अब क्या बोल रहे हैं उनको,
क्या कह रहे हैं उससे नहीं समझते। बच्चे कभी भी आचरण से सीखते हैं। तो आदर्श पिता बनना, तुम्हारे हर आचरण का अनुकरण करके पुत्रों को गर्व की अनुभूति हो। आदर्श मां बनना और आदर्श सास बनना। आदर्श सास वह होती है जो अपने बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करे। आदर्श सास बनना, आदर्श बहू बनना। आदर्श बहू वो होती है जो अपनी मां की तरह अपने सास से प्यार करे। पति से तो प्यार करते हैं और पति जिसका प्रोडक्शन है उसको भूल जाते हैं। पति से प्यार करते हैं और पति में जिस मां का खून है, पति के खून से घृणा करें। पति के खून से घृणा करने वाली कभी भी अच्छी बहू नहीं हो सकती है। अरे जिसने पति को पैदा किया, उस पति में जिस मां का खून है उससे भी प्यार करो। यदि तुम अपनी सास से घृणा करती हो, इसका मतलब अपने पति के खून से घृणा करती हो, और अपने पति के खून से घृणा करने वाली अपने पति की कातिल होती है। वो बहू नहीं हो सकती घर की। ऐसा भाव रखो। आदर्श सास बनो, आदर्श बहू बनो, आदर्श बेटा बनो, आदर्श नागरिक बनो देश के। आज मैं कहीं पर भी दुनिया में जाता हूं तो अपने देश का अपयश नहीं यश करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं हमारे आचरण से हम ही नहीं, हमारा पूरा देश प्रभावित होता है। हमारे अच्छे या बुरे आचरण से मात्र हम ही नहीं, हमारा देश प्रभावित होता है। कुछ भी करने से पहले 100 बार, 1000 बार, लाख बार सोचो। मुझसे बहुत लोग कहते हैं, बाबा क्या आपके मन में कभी कोई विकार नहीं आता? मैंने कहा पहली बात तो इतना व्यस्त रहता हूं कि विकारों को फुर्सत ही नहीं। सुबह से शाम तक काम ही काम, कभी नहीं विश्राम। कामचोर हरामखोर ठीक नहीं होते। इतना काम ही काम, और मैं कुछ भी करने से पहले 100 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार सोचता हूं यदि मुझसे कुछ भी गलत हुआ तो करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी सन्यास की संस्कृति बदनाम होगी, और आगे से कभी सन्यासी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। देश की व्यक्ति किसी होगी। ऐसे आप भी सोचना। तो कभी जिंदगी में अज्ञान में, भूल से, प्रमाद से भी आपसे गलत काम नहीं होगा। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं व्यक्ति नहीं, मैं भारत हूं। ये मेरा सिर हिमालय, दाएं बाएं भुजाएं, पूर्व पश्चिम पहरी, मेरी कन्याकुमारी, मुझ में भारत बसता है। मैं भारत हूं, मुझसे भारत है, मुझ में भारत है। मैं भारत के लिए हूं, भारत मेरे लिए है। ऐसा मैं भगवान का बेटा हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं, मैं आर्य पुत्र हूं, मैं अमृत पुत्र हूं, मैं अजर अमर नित्य विनाशी ज्योतिर्मय तेजो में शाश्वत आत्मा हूं। अरे ये शरीर के, ये मन की, इंद्रियों की दुर्बलताएं, कमजोरियां, इनमें कभी नहीं जीना। हिम्मत करके एक बार इनको पार करके जाओगे तो पाओगे अपने आप को आत्म विजेता के रूप में, और जो आत्म विजेता होता है वो विश्व विजेता बन जाता है। ऐसा बनना है। कुछ ऐसे मरे मरे जीते रहते हैं। बाबा जी हम कुछ नहीं कर पाए, हमको बहुत अफसोस है। क्या अफसोस है तेरे को? पागल, होश में आ, सोच। मैं कह रहा था मैं किसी एक आदर्श की बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य कॉमन बात कर रहा हूं। लेनिन, मार्क्स, माओ, आइंस्टीन, पतंजलि, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानकदेव, गुरु गोविंद सिंह, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, ईसा मसीह हो, प्रोफेट मोहम्मद साहब हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी महापुरुष हुए उनमें जैसी आत्मा थी वही आत्मा हम सबके भीतर है। हम चाहें तो हम भी उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। ये सामर्थ्य भगवान ने सबको दिया है। बोलो, ऐसा सामर्थ्य पाना है? ये आपको पढ़ाने आया हूं पाठशाला में।
पाठशाला में जीवन का पाठ पढ़ाने आया। बोलो पढ़ोगे ना? अच्छे बच्चे हो ना? तुम अपने आप को बड़ा मत मानना, मैं तो अभी भी अपने आप को बच्चा ही मानता हूं। बच्चे में बड़ा फायदा हमेशा। बच्चे जो है निर्मल होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, कोई डांट भी दे तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। और ये बड़ी गांठ बांध लेते हैं। गांठ बांध के कभी मत रखो। कभी गांठ बांध के नहीं रखो। मैंने सच में कभी गांठ बांध के नहीं रखी। मैंने देखा मेरे जिंदगी में बहुत से लोगों ने, जैसे करोड़ों लोग मेरी इज्जत करते हैं, बहुत लोग मेरा अनादर भी करते हैं, और बहुत से लोग जिन्होंने मेरा अनादर किया फिर वो मेरा आदर भी करते हैं। मैं तो कभी, एक भाई ने मुझसे बोला, उन 15 साल पहले मेरा बहुत अनादर किया जब मुझे दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता था। मैं एक ऐसे ही सामान्य इंसान की तरह ही, आपकी तरह ही ऐसे आया हूँ छोटे से गांव से, तो सेवा भी करने लगा। तो उसने मेरा बहुत अनादर किया। 15 साल बाद मैंने उसकी बहुत इज्जत की। तो वो बोलता है, बाबा मुझे आपने माफ़ तो कर दिया ना? मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपका मैंने बहुत अपमान किया था, मैं तो आपको जिंदा नहीं देखना चाहता था और आपने मेरी इतनी इज्जत की। मैंने कहा तुमने तुम्हारा काम किया था और मैं तो उसको उसी समय भूल गया था, तुमने दोबारा याद दिलाया। अब मैं कभी दोबारा याद मत करना, क्योंकि मैंने उसको अपने दिल पर रखा ही नहीं था। मैं आपसे कहूँगा अपने दिल में कभी गांठ बांध के मत रखना, ऐसे ही रहना। बेटे से कुछ गलती हो जाए, बहू से कुछ गलती हो जाए, शिष्य से कुछ गलती हो जाए, पुत्र से कुछ गलती हो जाए, बाप से कुछ कभी गलती हो जाए, हम लोग ने गांठ बांध के रख देते हैं। गांठ समझते हो ना? गांठ बांध के रख लेते हैं। गांठ बांधने को क्या कहते हैं असमिया में? गाठी बोलते हैं। हाँ हाँ, गाठी, गठिया। गांठ बांध के मत रखना दिल में। मैं बोल रहा था आपसे, हमेशा ऊंचे विचार रखो। ऊंचे विचार रखोगे ऊंचे बन जाओगे, और घटिया विचार रखोगे घटिया बन जाओगे। जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा आहार। क्या बोला मैंने? ध्यान से बच्चों सुनो जरा। जैसे होंगे विचार वैसा होगा आहार, वैसा होगा व्यवहार। मैं शाकाहार करता हूं, निरामिष हूं। क्यों? मेरे विचार ऐसे हैं। मुझे यदि कोई सारी दुनिया का साम्राज्य दे और कहे बाबा एक अंडा खा लो, पूरा ब्रह्मांड मिल जाएगा, मुझे अंडा नहीं खाना। मुझे कहे बाबा एक बार पी लो एक घूंट दारू की, मैं पी सकता हूं? बोले बाबा ये आप ऐसे कैसा प्रश्न पूछ लिया? लोग तो पैसे में पीते हैं। मुझे कोई कहे कि बाबा एक घूंट पीने के 100 करोड़ रुपए, मुझे 100 नहीं, 1000 नहीं, कोई लाख करोड़ रुपए भी दे, मैं कभी नहीं पीऊंगा। क्यों? मेरे विचार ही ऐसे हो गए। ये मद्य मांस का उदाहरण दिया। ऐसे ही दुनिया में कितना ही बड़ा प्रलोभन आए। मुझसे बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया है, कितना ही पैसा ले ले इसको बंद कर दे। अरे मैंने कहा बेईमानो, ये बंद नहीं हो सकता। मुझे पैसा नहीं चाहिए, देश का पैसा देश को दे दो। मैं तो फकीर हूं, 2 कपड़े पहनता हूं, और जब भी मेरा काम पूरी हो जाएगा तो लंगोटी में आ जाऊंगा। एक कपड़े तो तुम्हारे लिए पहनता हूं, सच्ची बताता हूं। मैं तो लंगोटी में ही खुश हूं, और दिगंबरी हो जाऊंगा तो और खुश हूं। यह तो आनंद ही आनंद है। भाई बहनों, जिंदगी में हमारे विचार हैं जो हमें मजबूती देते हैं। विचार ही हमें दृढ़ता देते हैं। प्रलय हो जाए दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा जग बैरी हो जाए, मैं अपनी राह से कभी नहीं हटूंगा, कभी नहीं डिगूंगा, कभी सत्य के साथ समझौता नहीं करूंगा। ऐसा विचार, ऐसी दृढ़ता सबके भीतर रहनी चाहिए। ये विचारों से दृढ़ता आएगी कि मैं अपने असूलों से, सिद्धांतों से, मूल्यों से, आदर्शों से कभी समझौता नहीं कर सकता। ये दृढ़ता किससे है? विचारों से।
और किसी में कोई मूल्य, कोई आदर्श है ही नहीं, कुछ भी कर लेते हैं, किसी के साथ ही चल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। न चरित्र है, न खान पान है, न जीवन है, न आचरण है, न वाणी है, न व्यवहार है। जो आया सामने वही खा लिया, जो आया सामने वही पी लिया, जो आया सामने हाँ उसी से आई लव यू मैं हो लिया। फिर सुबह किसके साथ था, कल किसी के साथ हो लिया। ये ऐसे ही होता है, ये कोई जिंदगी है? पशुओं की तरह, जैसे कि चाहे जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, किसी के साथ भी हो लेते हैं। ये कोई आदर्श नहीं है, तो पशुता है। तो मनुष्य हो, मनुष्य बनकर के जियो। विचार जैसा होगा वैसी तुम्हारी वाणी होगी, वैसा ही तुम्हारा व्यवहार होगा, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होगा, वैसी तुम्हारी आदतें होंगी, वैसा ही तुम्हारा खान पान होगा, वैसे ही तुम्हारे आदर्श होंगे, वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। विचार गिर गए, गिर जाओगे। विचारों में ही दृढ़ता है, विचारों में ही कमजोरी है, विचारों में ही सफलता है, विचारों में ही असफलता है। विचारों के कारण से ही तुम सुखी होगे, और विचार खराब हो जाएंगे दुखी हो जाओगे। विचार के कारण से ही एक इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है, सारा जहां उसको देखता है, और घटिया विचार आदमी को नीचे गिरा देते हैं। कभी भी नीचा विचार नहीं रखना, ऊंचा विचार। तो कह रहा था, जीवन की पाठशाला में पाठ पढ़ा रहा हूं कि हमेशा कैसे विचार रखना, ऊंचे विचार, ऊंची सोच, ऊंची पसंद, ऊंचे काम, ऊंचा चरित्र, ऊंचा आचरण, ऊंचा आदर्श। घटिया सोच नहीं, नीची सोच नहीं, छोटी सोच नहीं, नैरो माइंड, ये ठीक नहीं। हर पल इस विचार में जीना। मैंने जीवन की पाठशाला में इसको पढ़ा था, जीवन की पाठशाला में। छोटा था ना, छोटा था तब एक विचार मेरे मन में आया, भगवान ने मुझे भी वही शक्तियां दी जो महापुरुषों में है, ऋषिमुनियों में। हम सबको भगवान ने प्रथम होने का सामर्थ्य दिया है। ये बहुत बड़ा विचार है। पाठशाला वालों, ये पाठ पढ़ के जाओ। क्या विचार दिया रहा हूं? भगवान ने हम सबको प्रथम होने का सामर्थ्य दिया है। सब मेरे साथ बोलो, भगवान ने हमें प्रथम होने का सामर्थ्य दिया है। मुझे प्रथम ही रहना है। प्रथम प्रथम प्रथम। कुछ तो पीछे से फर्स्ट रहते हैं, आगे से फर्स्ट। पत्रकार बनना है तो पूरे देश में नंबर 1। फोटो को खींचने वाला बनना है, छायाकार बनना है, फोटोग्राफर बनना है तो नंबर 1। योगी और साधु सन्यासी बनना हो तो नंबर 1। बिजनेसमैन बनना हो तो नंबर 1। डॉक्टर बनना हो तो नंबर 1। पहलवान भी बनना हो तो नंबर 1। कोई तुम्हें हिला ना सके। क्रिकेटर बनना हो, एक्टर बनना हो। एक्टर ये नहीं कि कपड़े उतारने से नंबर 1 हो जाओ। हाँ, आजकल ये भी होड़ लगी हुई है। ऊपर का उतारो तो 10 लाख, नीचे का उतारो तो 20 लाख, और पूरे उतारो तो 1 करोड़। तो पूरे उतार देते। ये नंबर 1 नहीं है। तुम अपनी कला से नंबर 1 बनो। मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है। पॉलिटिशियन ए राजा वो राजा रानी वाला जैसा मत बनना, लूटने वाला। पॉलिटिशियन बनना है तो रघुपति राघव राजा राम, राजा राम बनना, ए राम नहीं बन, ए राजा नहीं बनना। रघुपति राघव राजा राम, ए राम, ए राम, ए राजा से बचाओ। ए राजा नहीं बनना, वो राजा बनना। रघुपति राघव। पॉलिटिशियन बनना तो अच्छा बनना, ब्यूरोक्रेट बनना तो ऐसा बनना पूरा देश कहे भाई इस जैसा कोई नहीं है? जैसे हमारे देश में बहुत है। जैसे हमारी पहले आईपीएस महिला बनी, हाँ, किरण बेदी। उसने कभी भी जिंदगी में 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली और
छोटे आदमी से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो सामने आया, जिसने कानून का पालन नहीं किया उसी को मजा चखाया। ऐसा दृढ़ता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की गाड़ी का भी चालान कर दिया। ऐसे दृढ़ता होनी चाहिए। जो काम, जहां रहो सच्चे बन के रहो, अरे इज्जत से जियो। ये बेईमानी की, गद्दारी की, झूठ की जिंदगी, करोड़ों की दौलत पा करके भी वो लोग असुर हैं, राक्षस हैं, नीच हैं, गद्दार हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं है। और जिसके पास चाहे पहनने के 2 कपड़े हैं, चाहे वो रहता हो झोपड़ियों में, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से जो जीता है उसका जीवन सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, आदरणीय है, वर्णीय है। ऐसा जीवन जीना क्या जीवन, जहां जियो नंबर 1 होकर के जियो। लेक्चरर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, किसान हो, जवान हो, सेना में हो तो वहां पे नंबर 1 होकर के रहो। 10 मन हो गया, छक्के छुड़ा दो। पुलिस में हो, अपराधियों को धूल में धूल चटा दो। ऐसे नहीं कि अपराधियों के साथ मेरे 20 लाख रुपए चोरी करके लाए, बोले 10 लाख रुपए मुझे दे दे, 10 लाख अपना आप रख ले। ये नहीं। पुलिस वाले बनो, ब्यूरोक्रेट बनो, जज बनो। आजकल जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा आया हुआ है, ऐसा बेईमानों के नाक में नकेल डाल रखी है। इससे पहले भी जज आए, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जो भूत हो गए भूत ठीक है। हमारे वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने देश के लोगों का भरोसा पैदा कर दिया न्याय व्यवस्था के ऊपर, जो अविश्वास था। तो मैं कह रहा था जहां रहना है वहां नंबर। पाठशाला वाले, पाठ पूरा हो गया है, हम नंबर 1 हो गए। तो अरे तुम्हारा भी नाम नंबर 1 हो। और जब नंबर 1 1 नंबर के, हाँ कुछ दूसरे भी 1 नंबर के होते, बोलो 1 नंबर का बदमाश है वो वाला, 1 नंबर का मत हो ना। अच्छे काम में नंबर 1 होना, और इतने ज्यादा एक होना, नेक होना कि पाठशाला वाले इतने ऊंचे उठे, इतने ऊंचे कि सारी दुनिया कहे अरे पाठशाला के लोग तो सच में जीवन की पाठशाला में कामयाब इंसान। अपने को नंबर 1 बनना है और अपने भारत को, अपने कंट्री को भी नंबर 1 बनाना है। हम सब सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और जो भ्रष्ट और बेईमान लोगों ने देश का करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है, ये भी इनसे वापस लेना है और इस भारत को भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। अपने आप भी नंबर 1 होना है, अपने देश को भी नंबर 1 बनाना है। ये 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में आएगा तो यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई बेबसी लाचारी की जिंदगी नहीं जिएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। इतना सरल बन जाएगा। ये करना है, खाली भाषण देने नहीं आया हूं। तो बोलो अपने आप नंबर 1 बनने के लिए और इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सब। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। तो अपना भी निर्माण करेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हाँ, और ये जिस दिन ये बेईमानों से पैसा वापस लाना, आपने सिग्नेचर किया है ना काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, कितनों ने सिग्नेचर किया है? सबने क्या सिग्नेचर किया है? काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को। दूर से तो बोलो ना, दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए। पहले दिल्ली में बहादुर लोग बैठते थे, आजकल कायर, कमजोर, भ्रष्ट, बेईमान, गद्दार, चोर लोग ज्यादा बैठ गए। जरा उन तक आवाज जाए, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे। आवाज ऐसी जोर से, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब लगा कि पाठशाला वाले जाग गए।
एक बड़े वाले पाठशाला वाले भी तैयार हो गए, छोटी वाली पाठशाला वाले भी। और ये भी स्कूल का ही ग्राउंड है क्या? हाँ, तो ये बजाली तहसील है और बजाली स्कूल, बजाली हाई सेकेंडरी स्कूल है। एक बार हमारे स्कूल के भी सभी बच्चों के लिए और हमारे स्कूल के प्राध्यापक, अध्यापक, आचार्यों के लिए भी जोरदार अभिनंदन इन व्यवस्था में सहयोग करने के लिए। अपने को खुद अच्छा बनना है, अपने देश को अच्छा बनाना है। खुद अच्छा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद अच्छा बनना है तो अच्छी आदत बनाओ। एक खराब आदत बनाओगे पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। एक खराब आदत बनाओगे, एक खराब आदत बना लो, बीड़ी, सिगरेट, शराब, दुराचार, व्यभिचार, झूठ बोलने की, कोई भी, तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। और एक अच्छी आदत बना लो, सुबह सुबह उठ के योग करने की। करो ना, मारो फूंक लंबी लंबी। सुबह सुबह जो उठ के योग करेगा उसको कोई रोग, ऐसे मैं भी तो इंसान हूं, मुझे बीपी है बोलो नहीं है, शुगर नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, कैंसर, टीबी, मोटा पतला भी मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं। मुझे नींद के लिए गोली नहीं खानी पड़ती, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता है, मुझे भूख अच्छी लगती है और मुझे कब्ज नहीं होता है। कुछ तो खा करके 3-3 दिन तक टॉयलेट ही नहीं जाते, पूरा अंदर स्टोर जमा करके रखते हैं। मुझे कब्ज नहीं है, मुझे गैस नहीं बनता है, मुझे एसिडिटी नहीं है, मुझे नींद अच्छी आती है, मुझे थायराइड की बीमारी नहीं है, मुझे बीपी शुगर नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है। मेरा मन भी खुश रहता है और भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है। दिन भर सुबह से शाम तक खुद हंसता हूं, औरों को हंसाता हूं, खुद उत्साह से भरा हुआ हूं और दूसरों को उत्साह से भरता हूं। उठो, जागो, अपने ध्येय की ओर बढ़ो। आग बन करके हो, राख बन करके नहीं। जो आग बन करके रहेंगे तो वो शेर हाथी भी डरते हैं, और राख बन गई तो चींटी भी रौंदती भी पार करके चली जाती है। इसलिए आग बन करके रहना, राख बन करके नहीं। तो जो योग करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा। ये बहुत शक्ति है योग में, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, अपने देश में बहुत शक्ति है। योग करो, पहला। दूसरा, करो कपालभाति करो। क्या नाम है इसका? कपालभाति। जो कपालभाति करेगा वो कोई मोटा और मोटी भी मुट्ठी आ गई है कुछ। अच्छा, अपने मोटे हो जाते खराब नहीं लगता। इधर ऐसे पकड़ो तो किसी किसी को तो 10 किलो आता है। हमने पकड़ा तो 5 ग्राम आया और किसी किसी को तो 5 किलो आता। इधर से हमारा पकड़ो तो पकड़ भी नहीं आएगा, और किसी किसी का तो ऐसे एक बच्चा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा। जो कपालभाति करेंगे कोई मोटे नहीं होंगे, एकदम फिट बॉडी, परफेक्ट बॉडी। सबको आइडियल बॉडी चाहिए ना, चौड़ी भुजाएं, चौड़ा सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई जगह, पूरा शरीर एकदम फिट, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक। कुछ ऐसे, बाबा जी मेरे को बीपी हो गया, शुगर हो गया, कमर दुखती है, घुटना दुखती है, हार्ट का बीमारी हो गया बाबा, नींद भी नहीं आता, दांत भी खराब हो गया, नाक भी खराब हो गया। मैंने कहा फिर तुझे नया शरीर दिलाना पड़ेगा। अब रिपेयरिंग से बात नहीं बनी पर शरीर कबड़ा कर लिया, शरीर एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। करो, तुम भी फूंक मारो।
बहुत जोर से मत करना, ऐसे नहीं करना। हाँ, कुछ प्राणायाम भी जोर जोर से करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना। वो कपालभाति में कुछ ऐसे मुंह निकालने लग जाते हैं, कुछ कंधे हिलाने लग जाते हैं, कुछ पूरे हिलने लगते हैं। मैंने कहा कहां से सीखा? बोले बाबा जी आपसे ही तो सीखो, अपने घर का कपालभाति बुला लेते हैं। ठीक ठीक करना है ना, मेथड ठीक होना चाहिए, राइट टाइमिंग के साथ करना। आपका जीवन बहुत पावन हो जाएगा। हम सब बहुत प्यारे हैं, हम भगवान के प्रिय हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं। हम सब किसके हैं? भगवान के। हम किसके हैं? और हमारा जीवन भी किसके लिए है? भगवान के लिए है। हम आए हैं कहाँ से? भगवान के घर से। हम कहाँ से आए हैं? और जाना भी कहाँ है? भगवान जी के घर जाना है, और वहाँ जवाब देना पड़ेगा। भगवान पूछेगा, नालायक क्या क्या करके आया बता। तो बताएगा नहीं तो क्या? भगवान ने अपने दिमाग में एक ऐसी चिप लगा रखी है, उसमें सारी चीज़ें मेमोरी उसके अंदर, जैसे आजकल कंप्यूटर की चिप के अंदर मेमोरी होती है, तो ऐसे सारी मेमोरी उसमें स्टोर होती रहती है। ब्रेन के अंदर एक ऐसी फ्लॉपी लगा के, ब्रेन रूपी फ्लॉपी में ऐसी चिप लगा करके भगवान ने भेज रखा है। जब तुम जाते हो ना, ये चित्त ही चित्रगुप्त है। चित्त ही क्या है? बोलो, चित्त ही चित्रगुप्त है। चित्त ही चित्रगुप्त है। ये जब भगवान के पास जाते हो ना, तब भगवान जी कहते हैं, अच्छा शादी करने के बाद भी तूने गड़बड़ की, शादी से पहले भी गड़बड़ की, और तूने चोरी भी की, दुराचार भी किया, तूने जो है ये गलत काम किया। हाँ बोलो कि भगवान जी किया तो है। तो बोल चल, अब तू आदमी नहीं, तेरे को इस बार गधा बनाता, तुझे कुत्ता बनाता हूँ, तुझे कीड़ा बनाता हूँ। तो बोला बनना मंजूर है? तो अब से ही अच्छे काम कर लो। यदि कुत्तों की तरह काम करोगे, गधों की तरह काम करोगे, कुछ लोग, हाँ, उनका जीवन आचरण देखो तो ऐसे ही लगता है। गधे को कितना ही समझा लो फिर भी लात मारना नहीं छोड़ता, कुत्ते को कितना ही समझा लो फिर भी भौं भौं करता ही रहता है। कुछ तो पति पत्नी कुत्तों की तरह लड़ते, और बच्चे खड़े खड़े रोते रहते हैं, मम्मा झगड़ा मत करो। हाँ? बेटी मम्मा से चिपक जाती है, बेटा पापा से चिपक जाते हैं, और दोनों बीच में आ जाते हैं। मम्मा आप झगड़ा करोगे तो हम बीच में आ जाएंगे। झगड़ते हो ना? सब नहीं, कभी कभी झगड़ते हो। हाँ? और किसी दिन तो झगड़ के आपस में रोते भी हो कि हम कल से झगड़ा नहीं करेंगे। कुत्तों की तरह लड़ते हैं, आपस में भी बोलते हैं, फिर बोलते हैं कल से नहीं करेंगे, फिर सुबह तक फिर भूल जाते हैं, फिर वही करने लग जाते हैं। ऐसा मत करना कभी। भगवान जी के पास जवाब देना पड़ेगा जाके, क्या कर रहे थे तुम? हाँ? ये ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल अब तो बन गए आदमी, लेकिन पीछे वाली जो अपग्रेड जहां से होके आए हैं ना, वो संस्कार लेके आ गए। ये हमारा क्या है? ये अपग्रेडेशन है। जो मनुष्य का जन्म है ना, एक बोला बाबा जी पूर्व जन्म होता है, इसका प्रमाण क्या है? मैंने कहा अपने कर्मों को, अपने चरित्र को देख ले। कुछ आदतें हम में कुत्ते जैसी हैं, कुछ आदतें हम में गधे जैसी हैं, कुछ आदतें हम में सांप जैसी ढसते रहते हैं, कुछ आदतें हमने बिल्ली जैसी हैं, चोरी करने की है, और पता भी ना लगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना, दिल्ली में भी कुछ तो ऐसे तो हमको अब इसका मतलब वहां से हम होके आए हैं, अब दोबारा वैसा काम नहीं करना है। तो क्या करना है? सब उठ के योग करना। योग करोगे तो सच्चे इंसान बन जाओगे। एक कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम,
श्वास को बाहर छोड़ के अभ्यास से फिर अग्निसार भी हो जाएगा, फिर नोली भी हो जाएगा, वो अभी नहीं करूंगा, फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ओ, ये सब 8 प्राणायाम है, थोड़े आसन हैं, सूर्य नमस्कार है। अब तो अमेरिका में सबसे ज्यादा फेमस एक्सरसाइज हो रही है सूर्य नमस्कार, सब लोग कर रहे हैं, भारत में भी सब करना, सूर्य नमस्कार करना, योगिक जॉगिंग करना, आसन करना, मेडिटेशन करना, ये सब करना। अब आयुर्वेद के बारे में 1-2 बातें कहता हूँ। और देखो आयुर्वेद सस्ता है, सहज है, कोई भी घर में जड़ी बूटी लगा सकता है, साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत इफेक्टिव है और उससे बीमारियों का क्योर है। 200 साल पहले तो यही साइंस थी, एलोपैथी तो 200-250 साल पुरानी साइंस है, ये हमारी एंसेंट साइंस है, साइंटिफिक साइंस है, इफेक्टिव साइंस है और निर्दोष है, हानि रहित है। तो पहली बात तो आंवला, एलोवेरा, कुछ च्यवनप्राश, ऐसी जड़ी बूटियां खाते रहो जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा रहे। दूसरा, फिर कभी बीमार हो जाओ तो आयुर्वेद के जड़ी बूटी का प्रयोग करो। तो यहाँ पाठशाला में अपना चिकित्सालय है, हा? नहीं है? तो पाठशाला में भी बहुत जल्दी ही पतंजलि का एक आरोग्य केंद्र खोल दिया जाएगा। तो इसके बारे में तय करके 1 महीने के भीतर भीतर हम कोशिश करेंगे कि पतंजलि के च्यवनप्राश, आंवला, एलोवेरा, जो भी मुक्तावटी, मधुनाशिनी, जो भी मुख्य मुख्य औषधियाँ और मुख्य मुख्य उत्पाद जो अभी आपको बरपेटा से लाना पड़ता है, तो अभी बहुत जल्दी ही आपको पाठशाला में ये पतंजलि आरोग्य केंद्र की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। दूसरा ये है, कल सुबह से उठ के करना है सबको योग। एक योग से कितनी चीजें होती है, जरा सुनना। लोग कैंपेन चलाते हैं, किसके खिलाफ? डायबिटीज के खिलाफ, हार्ट डिजीज के खिलाफ, अर्थराइटिस के खिलाफ, HIV के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, वायलेंस के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, करप्शन के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये अकेला योग, ये एंटी करप्शन कैंपेन है, ये एंटी क्राइम, डिजीज, ड्रग, वायलेंस, क्राइम, करप्शन, ब्लैक मनी, टोटल करप्ट सिस्टम, सबके खिलाफ एक अभियान, योग और भारत स्वाभिमान, सबको मिलकर के इस अभियान में जुटना है। एक अभियान से सारा काम हो जाएगा, अलग अलग अभियान चलाने की जरूरत नहीं। योग और भारत स्वाभिमान के अभियान के तहत हमें चलना है और इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को डिजीज, ड्रग, वायलेंस, करप्शन, क्राइम, ब्लैक मनी, करप्ट सिस्टम, इससे उभारना है। एक तरफ चरित्र निर्माण करना है, दूसरी तरफ राष्ट्र का निर्माण करना है। ये पूरा अभियान भारत स्वाभिमान का, जिसमें सबका कल्याण सन्निहित है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, सब भारत स्वाभिमान के सदस्य बने, सुबह उठ के योग करें, औरों को कराएं, अपने जीवन में पावनता लाएं, व्यक्ति के जीवन में पावनता लाएं। योग करेंगे, हमारे शरीर, हमारे मन, विचार पावन हो जाएंगे, जीवन पावन हो जाएंगे और हम कह पाएंगे हम ऋषि पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं। हमारा देश पहले भी महान था, आज भी महान है? हम क्या बोलते थे? मेरे साथ बोलेंगे, है प्रीत जहां की रीत सदा,
है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। यह राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ इतने पावन हैं लोग यहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो मैं कह सकता हूँ ना, मेरे भाइयों का चरित्र राम जैसा है और माताओं का सीता जैसा। इस सीता माता तो ठीक है, इधर राम में कुछ रावण आ गए। बताओ, राम जी बीड़ी पीते थे क्या? दारू पीते थे? गुटखा खाते थे? हनुमान जी खाते थे? ऋषि मुनि खाते थे? तो तुम क्यों खाते हो? आज जितने भी यहाँ आए हुए हैं सब हाथ उठा के संकल्प लेके जाएंगे। सब ऋषि पुत्र है ना? जो राक्षस पुत्र है वो हाथ नहीं उठाएगा, ऋषि पुत्र सब हाथ उठाएंगे। हाथ उठाओ। हम सब संकल्प करते हैं आज के बाद कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब नशा का सेवन और कोई भी कोका कोला पेप्सी भी कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग। हाँ, हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो देश का पैसा बाहर जाता है और देश कमजोर हो जाता है। दो तरह से देश का पैसा बाहर जाता है। एक तो बेईमान गद्दार चोर लोग लूट के बाहर पैसा जमा करा देते हैं शीर्ष बैंकों में बाहर, और एक विदेशी कंपनियां लूटती हैं। ये दोनों ही तरह से